या गुड मॉर्निंग रावत जी। वेरी गुड मॉर्निंग या सर। तो कैसे रहा कल का आपका दिन और कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस? आर यू लिसनिंग? हाँ जी, हाँ जी। इट वाज वेरी नाइस सर, वेरी एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया रहा हम्म। जी। 1 मिनट, 1 मिनट मेरे को नहीं, आप डिटेल में थोड़ा बता सकते हो कैसे आपको वो स्माइल वाला आपने किया? जी 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 बहुत बढ़िया रहा सर। 10 टाइम एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर किया, हम्म। जो भी मेरे पास आया उसके साथ स्माइल किया। इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। गुड। ओके, तो आप कर पाए वो फेक वाला स्टार्ट? अभी स्टार्ट हाँ कर जी पाए सर, लगा? वो तो रेगुलर कर रहा हूँ ठीक है, सिंस थैंक लास्ट यू। 3 डेज। इट वाज गुड। थैंक यू। गुड मॉर्निंग अबानी कुमार जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ and Good share morning, sir. your Good morning. experience of yesterday. Yesterday I smiled a lot, Okay, and I have not prepared my mission statement to be very sure. okay. But for 2021 I have set some certain goals in my planner. Mm-hmm. Like your goals are divided into those 3 parts: health, your profession, and your family or your relationships. तो Yes, आपको yes. सब में लिखे हुए हैं अपने goals? I have purchased one planner for this one, Mm-hmm. और मैंने उसको लिखा भी. Okay. I have to maintain my weight. Now I am 65, so 65 kilo. So I have to maintain that weight. Mm-hmm. And to maintain that, I have to practice daily this Tibetan 5 exercises, Right, right, right. then morning walk, then asana and pranayam. Hello. Okay, okay. Right, right. I am listening. Yes. Now coming to mind, Mm-hmm. I have decided to undertake mind exercise every day, Mm-hmm. just 15 minutes. Mm-hmm. Meditation thought from you Mm-hmm. regarding this alpha level meditation. Mm-hmm. And most importantly, yesterday I have gone through a book, that was an e-book by some Adam something. Mm-hmm. And from that I have learned to unplug myself from limited to unlimited power of subconscious mind. Mm-hmm. That I have to implement. Mm-hmm. Then come to career, I have to improve. I have decided certain fields. चलो, लाइक वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। आपने एक बार लिख लीजिए आप, है ना, तो हम उस पे फिर काम करना स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमने काम करना है उस पे। ओके, अभी तनाया जी, आप जल्दी से बेड से निकल के तैयार हो सकते हो और जल्दी से, ताकि हम एक पावर सेशन स्टार्ट करें। और मीनाक्षी जी, आप भी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। श्रुति शर्मा जी, बसंती गिरी जी, तो जल्दी से जो आपके लिए शेयर करने के लिए रेडी हैं वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। बसंती गिरी जी, मीनाक्षी कपूर जी, श्रुति शर्मा जी, तनाया साहा। श्रुति शर्मा जी, आप शेयर करेंगे? Yes, sir. Good morning, Good everyone. morning. It was a great experience yesterday. I mean, that smile practice was really nice because when I smiled so many times, I realized that जो आपको किस छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था वो नहीं आ रहा था because you started it with a smile, and because it was like that you were smiling for no reason. So it was making me feel joy. तो वो बन जाता है कि आप स्माइल नेचुरली कर सकते हो विदाउट एनी, तो वो नेचुरल ही बन जाता है, न्यूट्रल। हाँ, for no reason I was smiling. Yes, I was feeling joyful. बिल्कुल। तो वो जैसे आप एक्शन करते हो तो वैसे ही आपकी इमोशंस बननी शुरू हो जाती है। नॉर्मली हम उल्टा चलते हैं, पहले इमोशंस आती हैं फिर हम उसके अकॉर्डिंगली एक्शन करते हैं। अगर अच्छा फील करते हैं तो फिर हम स्माइल करते हैं, बट उल्टा भी वैसे ही वैलिड है। अगर आप स्माइल करते हो तो आपकी फीलिंग्स जो है अच्छी आनी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। Yes, it was, मतलब it worked a lot.
हाँ, थैंक यू। और आपने वो प्लानर भी अच्छा करके लगाया हुआ था और आपने पेस्ट भी किया हुआ था इवन, तो वो अच्छी बात। Yes, I pasted it in my Mira, and this was the first time I did it. I am हम्म, the college. I used to ask my students, make your resolutions and do such stuff every year. But I've never done this in my life. I've did it for the first time, and I was feeling good. Let us see if I achieve them all. ओके, ग्रेट, बेस्ट, थैंक यू। Thank you. मीनाक्षी जी, आप शेयर करोगे अपना? ओके, मीनाक्षी जी, आई थिंक शी इज नॉट कनेक्टेड विद ऑडियो। तनाया जी, तनाया साहा। जी तनाया, गुड मॉर्निंग। Yeah, good morning. Actually, I couldn't listen couldn't yesterday. attend the yes, और आपने रिकॉर्डिंग्स नहीं अभी सुनी, लाइक? नहीं, recording सुने थे रात को, but that's why I could not practice the things, but I'll do it today. ओके, ग्रेट। तो स्टिल हमारा कल का मेनली 3 चीज पे फोकस था। एक तो स्माइल आपने करना है, लाइक यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट, तो आपने स्माइल करते रहना है। और सेकंड था हमारा मिशन स्टेटमेंट जो हमने लिखनी है 2021 के लिए। और तीसरा हमारा जो है तीसरा कौन बताएगा जो जल्दी से? दीक्षा जी। So writing down your missions. I was not present yesterday, but ओके, I अबानी कुमार think जी, so. क्या आप दीक्षा तनाया जी के लिए जल्दी से बताएंगे कि क्या क्या चीजें करनी है हमने? Smiling, sir, smiling. स्माइलिंग हाँ, एंड तीसरा गोल था स्माइल। ओके, नो तीनों एक बार आप जल्दी से बता दीजिए। स्माइलिंग, One is smile, यस and second one is आपका मिशन स्टेटमेंट, यस। and थर्ड third वन one था is कि आपने वो मैसेजेस सेंड करने थे अपने जो है सबको, third one is the forgiveness. नहीं भी चल रही। हाँ। तो ये तीनों काम है तनाया जी, आप आज कर लीजिएगा, उससे हम आगे चलते हैं। तो चलो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से जिनके कैमरास ऑफ हैं वो अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। अच्छा जी, तो हमारा बेसिकली है क्या इसमें, जो हमने मिशन स्टेटमेंट लिखे हैं तो उसमें एक हम यूज करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको द सीक्रेट एक बुक भी है, बड़ा फेमस सी बुक है, और उसमें भी उसको डिफाइन किया, और अदरवाइज भी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कितने लोगों ने उसके बारे में सुना हुआ है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? यस। तो कोई जल्दी से मेरे को बताएगा कि आप क्या समझते हो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? कौन करेगा सबसे पहले अनम्यूट? अबानी कुमार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताऊं सर? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये है, आप अगर सबकॉन्शियस माइंड में अपना कुछ भी ये जो चाहते हैं और इसको उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मगर उसको अगर आप अपना जो भी चाहते हैं उसको आप अगर दुनिया को फेंक देते हैं, एटमॉस्फेयर में दे देते हैं, तो वो आपको विद एबंडेंस आपको वो मिलता है। इससे जो सिंपली वन टर्म ये है, विद ऑल एबंडेंस। ठीक है जी, थैंक यू अबानी जी। श्रावत जी, यस आप बताइए। जी, रावत जी। क्या है सर, तो हम लोग सोचते हैं वही हमारे साथ होता रहता है। जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। ठीक है, चलो बिल्कुल। मीनाक्षी अनेबल टू सी यू। नहीं, मेरी वीडियोस या ऑडियो ठीक चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ओके, थैंक यू मीनाक्षी जी। मे बी आपके एंड पे कुछ इंटरनेट कनेक्शन या कुछ और इशू हो, तो काइंडली आप एक बार अगर इशू सोल्व नहीं हो रहा तो आप एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो इसमें होता क्या है बेसिकली, यही है कि हमारा ओके, फॉर एग्जांपल जैसे रावत जी ने भी बताया, अबानी कुमार जी ने भी बताया कि जो आप चाहते हो उसको आप अगर उसको उसके बारे में सोचेंगे तो वो चीज आनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, बेसिकली अगर मैं आपको एक सिचुएशन बताऊं कि 2 लोग हैं। एक आदमी पहले बहुत अमीर था, उसके पास लाइक बिलियनियर था वो, और एकदम से वो गरीब हो गया, एकदम से उसको कुछ स्टॉक मार्केट्स आई डाउन आई और वो गरीब हो गया। और एक आदमी ऐसा है जो शुरू से ही पुअर है,
तो वो शुरू से ही लाइक उसकी इनकम से के 10,000 रुपीज पर मंथ है, और उसकी शुरू से ही उतनी ही इनकम है, पिछले 10 साल से 20 साल से उसकी फैमिली की भी उतनी इनकम थी। और एक आदमी है जिसकी इनकम करोड़ में थी, ठीक है, वो उसके पास टोटल वर्थ उसकी 1000 करोड़ थी, और अभी उसकी एकदम से कुछ क्रैश आया और उसकी वर्थ जो है कम हो गई। अभी आज की डेट में दोनों के पास एक जितनी वर्थ है। तो आप क्या सोचते हो कि अगले 1 साल में किस आदमी के पास ज्यादा वर्थ होगी, कौन ज्यादा अमीर होगा? वो आदमी जो शुरू से ही गरीब था अब तक गरीब चल रहा है, या जो शुरू में बहुत रिच था और एकदम से वो गरीब हुआ है अभी? क्या आप सोचते हो? चैट बॉक्स में लिखिए, तो कौन ज्यादा अमीर होगा, द पुअर वन और द रिच वन? Sir, after the event, how they are thinking, sir? Like after this event, based on that only, the result will be like. After that in the story, the circumstances happened, right? So at the same level, what was the thinking level at the feeling level of them? So based on that, they will reach that goals. तो फीलिंग लेवल कैसे आएगा? देखिए, जो आदमी अमीर है, जो आदमी पहले से रिच है, उसको रिच रहने की आदत पड़ी हुई है, उसको उसका बिहेवियर वैसा है रिच रहने का, है ना? तो वो उसके बिना उसकी क्या होगा कि उसकी पावर जो है उसको आदत पड़ी हुई है, तो वो बड़ा जल्दी से वहां पे जाएगा। जो आदमी पुअर है उसको आदत पड़ी हुई है पुअर रहने की, वो 10,000 में भी अपना गुजारा कर रहा है, तो उसको आदत है, वो उसको उतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं होगी, उसका बिहेवियर वैसा नहीं होगा, उसको वो एक्शंस वैसे नहीं लेगा। बट जो आदमी पहले से अमीर रह चुका है, तो वो एक्शन करेगा उतनी, और वो उतनी शिद्दत के साथ काम करेगा जिससे वो दोबारा वो हो पाए। सेकेंडली, हम ऐसे लगाते हैं, वेट पे लगाते हैं कि मान लीजिए आपका वेट 70 kg रहा है, आपने सभी कपड़े भी वैसे हैं 70 kg में की, आपकी सारी फोटोज हैं, बट एकदम से कुछ हुआ तो आपका वेट एकदम से 100 kg हो गया, ठीक है? और सेकंड एक सिनेरियो ये है कि आपका एकदम से 70 से 100 kg हो गया, और सेकंड ये है कि आपको पिछले 10 साल से आपका वेट 100 kg ही है। तो कौन से सिनेरियो में आप जल्दी 70 kg पे वापस आओगे? You have to feel and work for it. हाँ जी, आपको अनुभव करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा कि हाँ मैं हो गया हूँ, yes. और उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। दोनों चीज। तो मतलब बेसिकली होता क्या है इसमें, अगर आपकी फीलिंग्स, अगर आप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है कि इसमें अगर आप अपने आप को, हम इसमें मान लेते हैं कि जैसे आपका जो आपने मिशन स्टेटमेंट बनाई है उसमें, तो उसमें होता क्या है कि जब हम उस स्टेटमेंट में पहुंच जाते हैं तो हम उसको फील करना स्टार्ट कर देते हैं अभी से। लाइक मान लीजिए आपका जो है ये गोल है कि आपने 100 kg से या आपने 90 kg से रिड्यूस 70 kg पे आना है। तो 70 kg जब आपके हो जाएंगे तो आप कैसे फील करोगे, कैसे बिहेव करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे? तो वो जो आपका बिहेवियर होना चाहिए, वो आपका बिहेवियर आप उसको करना स्टार्ट कर दो अभी से। जो आपके रिलेशनशिप्स अगर आपके इंप्रूव हो जाएंगे फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ, या फिर अगर आपने एक पर्टिकुलर आपका इनकम लेवल हो जाएगा, जितना आपका, मान लीजिए कि अब आपकी जितनी भी इनकम है, से X है आपकी इनकम, और जो 1 साल के बाद आप चाहते हो कि 2X हो जाए, तो जब आपकी इनकम डबल हो जाएगी तो आप कैसे बिहेव करोगे, कैसे फील करोगे, कैसे आप लोगों से बातचीत करोगे, तो वो वाली चीज आप अभी से करनी स्टार्ट कर दो। अभी से, आज से आप फील करो कि आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो। ठीक है जी, ओके। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आप एक्चुअल में वैसा फील करने लगते हो, वैसा बिहेव करने लगते हो, तो वो चीजें आपकी तरफ खींचने लगती है, तो आप एक मैग्नेट की तरह काम करने लगते हो, और वो चीजें अपने आप जो है अपने पास, आपके पास आने लगती हैं। आप कुछ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हो कि अगर आप मान लीजिए, अगर आपने सोच लिया कि आपकी इनकम जब डबल हो जाएगी तो आप इस होटल में खाना खाने के लिए जाओगे, या फिर आप इस शोरूम से परचेज करोगे, या फिर आप यहाँ पे घूमने के लिए जाओगे, तो आप अभी से वहां उसकी सर्च करनी स्टार्ट कर सकते हो कि अभी 1 साल बाद आपने जहां पे घूमने के लिए जाना है उसकी आप प्लानिंग कर लो, उसकी देखनी शुरू कर दो कि कहाँ पे है, कौन सा रूट वहां पे जाता है। अगर आपने शॉपिंग करनी है कि अभी आप
उस पर्टिकुलर शोरूम से शॉपिंग नहीं कर रहे हो, उस पे एक बार जाओ, उस पे जाके कुछ छोटी सी चीज ले आओ, एक रुमाल आप खरीद सकते हो, जाके देख के आ सकते हो, घूम के आ सकते हो, जिस होटल में आप का रेस्टोरेंट्स में जाओगे वहां पे जाके आ सकते हो, एक सिर्फ एक चाय का गिलास पी के आ सकते हो, ताकि आपको आप यूज टू हो जाओ उन चीजों की। और जैसे आप रिलेशनशिप्स में भी यही होता है कि जब आपके रिलेशनशिप्स पर्टिकुलर लाइक बिजनेस रिलेशन या फैमिली रिलेशंस बन जाएंगे तो आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल होगा, वो कॉन्फिडेंस लेवल आप अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दो, तो वो चीजें अपने आप आपके पास खिंचनी शुरू हो जाएंगी। आप वेट मत करो, जैसे स्माइल में हम वेट नहीं करते कि एक रीजन होगा फिर हम स्माइल करेंगे, हमने स्माइल करनी स्टार्ट कर दी और रीजंस अपने आप आने स्टार्ट हो गए। और ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, आप जो आपके गोल्स हैं आप उनको आप ऐसे बिहेव करो कि वो अचीव हो चुके हैं ऑलरेडी, और फिर वो अपने आप अचीव होने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये एक नेचुरल लॉ है, अभी इसको एक्चुअल में ये वर्क करता है। और आगे हम आने वाले लेक्चर्स में एक हमने कंसेप्ट ऑफ गॉड की बात भी रखी हुई है, अगर हम उसमें बात करेंगे कि कैसे ये एनर्जीज काम करती हैं, कैसे यूनिवर्सल एनर्जीज होती हैं, तो उसमें आप देखोगे कि बिल्कुल ये सभी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। तो आप अपने सिर्फ माइंड के थ्रू, अपने सबकॉन्शियस के थ्रू चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हो। ये अनसाइंटिफिक नहीं है, ये प्योरली साइंटिफिक चीज है। ठीक है जी, इसमें क्लियर है सबको? तो अभी हम आज भी जो अपनी C2A मेडिटेशन करेंगे, तो उसमें C2A मेडिटेशन के बाद हमने जब हमारा शुरू में जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, फिर हम 2 राउंड ऑफ भस्त्रिका करते हैं, जैसे हमने कल वाले में भी किए थे। पहले राउंड में हम A टू लेके Z तक करते हैं, फिर सेकंड राउंड में 26 से लेके 1 तक करते हैं। उसके बाद फिर हम सभी बॉडी पार्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, सभी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, 3 बार ऐसे करते हैं। फिर हम C, B एंड A लेवल पे जाते हैं। C लेवल पे हम क्या करते हैं, आईज बंदी रखते हुए थोड़ा सा आईज को अप्रोल करते हैं, जैसे ऊपर की तरफ यहाँ पे देख रहे हो, और फिर हम इंग्लिश का अल्फाबेट C विजुअलाइज करते हैं। C लेवल पे हम सभी बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स छोड़ते हैं। फिर हम B अल्फाबेट विजुअलाइज करते हैं, उस पे हम अपने ब्रेन को रिलैक्स करते हैं। फिर हम A को विजुअलाइज करते हैं, उस लेवल पे हम अबव द क्लाउड्स जाते हैं और उस लेवल पे जाके हम अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं और मेडिटेशन के लेवल पे और डीपर जाने के लिए खुद से 100 से 1 काउंट करते हैं। ठीक है जी। और फिर हम आज क्या करेंगे, उसके बाद जब हम C लेवल से फिर बाहर आ जाएंगे 1 से लेके 5 तक के लेवल पे, उस लेवल पे जब हम बाहर आ जाएंगे तो उस लेवल के बाद और आंखें खोलने से पहले हम ये सब विजुअलाइज करेंगे कि हमने वो चीजें अचीव कर ली हैं जो आपके मिशन स्टेटमेंट्स हैं। आप विजुअलाइज करोगे कि आपका बॉडी वेट जो है, जितना आप चाहते हो या आप जितनी एनर्जी चाहते हो वो आपने अचीव कर ली है। और ऐसी रिलेशनशिप्स में, ऐसी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो आपने एक्चुअल में फील करना है कि आपने वो चीज अचीव कर ली है और आप उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। फिर हम धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलेंगे। ठीक है जी। तो ये हम अपनी जो हमारी गोल्स हैं, मिशन स्टेटमेंट है, उसको हम इस मेडिटेशन का पार्ट बना लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। जल्दी से अगर तैयार हैं सब लोग? ओके, तो ओके, जल्दी से अपनी जगह बना लीजिए मेडिटेशन स्टार्ट करने के लिए। आप चेयर पे भी बैठ सकते हो, बेड पे भी बैठ सकते हो, आप बस आसपास किसी चीज को टच ना कर रहे हो। अपने कैमरास ऑन ही रखिए मेडिटेशन के टाइम, क्योंकि एक एनर्जी होती है जो बनी रहती है जब आपके कैमरास ऑन होते हैं। अपना ध्यान आंखें बंद रखते हुए अपने सांस की तरफ लेके जाएंगे, ब्रीदिंग की तरफ।
सांस को अंदर जाता हुआ और बाहर आता हुआ फील करें। धीरे धीरे आपकी सांस की रफ्तार रेगुलर हो रही है, डीप हो रही है। आंखें बंद ही रखते हुए फर्स्ट राउंड ऑफ भस्त्रिका के लिए अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करके अपनी शोल्डर्स के पास लेके आएंगे। इनकी आवाज के साथ सांस अंदर लेंगे, हाथ ऊपर जाएंगे और हाथ ऊपर जाके खुल जाएंगे। जब अल्फाबेट ए से लेके जेड तक बोला जाएगा तो आपके हाथ नीचे आ जाएंगे, सांस बाहर होगा और मुट्ठियां बंद हो जाएंगी। स्टार्ट करेंगे। इन ए, इन बी, इन सी, इन डी, इन ई, इन एफ, इन जी, इन एच, इन आई, इन जे, इन के, इन एल, इन एम, इन एन, इन ओ, इन पी, इन क्यू, इन आर, इन एस, इन टी, इन यू, इन वी, इन डब्ल्यू, इन एक्स, इन वाई, इन जेड। रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को अपने थाइज पे रख लीजिए। आपकी बॉडी में एक नई एनर्जी जनरेट हुई है, उस ऊर्जा को फील कीजिए और देखिए कि कैसे वो एनर्जी आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है। अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ ले जाइए। देखिए कैसे सांस अंदर आ रहा है और कैसे बाहर आ रहा है। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, जेंटल स्माइल। आंखें बंद ही रखते हुए सेकेंड राउंड भस्त्रिका के लिए अपने हाथ शोल्डर्स के पास लेके आएंगे। इनकी आवाज के साथ सांस अंदर लेंगे, हाथ ऊपर जाएंगे और जैसे नंबर बोला जाएगा 26 से लेके 1 तक, सांस बाहर आएगा और हाथ नीचे आएंगे। स्टार्ट करेंगे। इन 26, इन 25, इन 24, इन 23, इन 22, इन 21, in 20, in 19, in 18, in 17, in 16, in 15, in 14, in 13, in 12, in 11, in 10, in 9,
in 8, in 7, in 6, in 5, in 4, in 3, in 2, in 1। रिलैक्स। अपने हाथों को अपनी थाइस पे रख लीजिए। आपके अंदर जो नई एनर्जी जनरेट हुई है, अपना ध्यान उस एनर्जी की तरफ लेके जाइए। उस एनर्जी के फ्लो को महसूस कीजिए। अपने चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट रखिए, जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। एक एक करके हम अपने बॉडी पार्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। सारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, माथे से स्टार्ट करते हुए, आंखों को जोर से बंद करते हुए, फेस को, दांतों को पूरे जोर से बंद करते हुए, बाजुओं को, अपने हाथों को मुट्ठियां बनाते हुए, टांगों की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, पैरों को, टोज को जोर से कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए माथे को, आंखों को, फेस को, आर्म्स को, हैंड्स को, टांगों को, पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे माथे की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, आईज को, फेस को, दांतों को, आर्म्स को, हाथों को, टांगों को, पैरों की उंगलियों को जोर से कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए माथे को, आंखों को, फेस को, बाजुओं को, हाथों को, पैरों को। एक बार फिर माथे को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, आंखों को, फेस को, दांतों को, हाथों को, पैरों को, पूरी बॉडी की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए माथे को, आंखों को, फेस को, बाजुओं को, हाथों को, टांगों को, पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग की तरफ। चेहरे पे एक जेंटल स्माइल। अपनी आंखें बंद ही रखते हुए आईज को थोड़ा ऊपर की तरफ अप्रोल करेंगे और इंग्लिश का कैपिटल लेटर सी, व्हाइट कलर सी
3 बार विजुलाइज करेंगे। सी सी सी। आप सी लेवल पे पहुंच चुके हो। इस लेवल पे हम सभी बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स छोड़ेंगे। अपना ध्यान अपने फोरहेड की तरफ लेके जाइए। अपने फोरहेड की स्किन को और मसल्स को रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपनी आईब्रोज की तरफ, आईलिड्स की तरफ लेके जाइए। अपनी आईब्रोज की और आईज की स्किन को और मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपने फेस की तरफ लेके जाइए। आपके फेस की स्किन को और मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपने नेक की तरफ और अपने शोल्डर्स की तरफ लेके जाइए। अपने नेक और शोल्डर की स्किन को और मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपनी अपर आर्म्स और एल्बोज की तरफ लेके जाइए। अपनी अपर आर्म्स और एल्बोज की स्किन को और मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपने फोरआर्म्स की तरफ, अपने हैंड्स की तरफ और आपके हैंड की फिंगर्स की तरफ लेके जाइए। आपके फोरआर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर्स की स्किन को और मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपनी चेस्ट की तरफ लेके जाइए। आपके चेस्ट एरिया की स्किन को और मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपने एब्डोमिनल एरिया की तरफ लेके जाइए। आपके पेट की स्किन को और मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपने थाइज की तरफ लेके जाइए। आपके थाइज की स्किन को और मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपनी नीज की तरफ और अपने लेग्स की तरफ लेके जाइए। अपनी नीज एंड लेग्स की स्किन को और मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ और पैरों की उंगलियों की तरफ लेके जाइए। पैरों की और टोज की स्किन को और मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। आपकी सारे बॉडी पार्ट्स बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं। अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों की तरफ, पैरों की तरफ, टांगों की तरफ, घुटनों की तरफ और थाइज की तरफ लेके जाइए और देखिए ये कितने रिलैक्स हैं।
जैसे बिल्कुल आपकी बॉडी से अलग हो। अपना ध्यान अपने पेट की तरफ, चेस्ट की तरफ, हाथों की तरफ, बाजुओं की तरफ, शोल्डर्स की तरफ, नेक की तरफ लेके जाइए और फील कीजिए ये कितने रिलैक्स हैं, जैसे बिल्कुल आपकी बॉडी से अलग हो। इस सी लेवल पे आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स करती है और अपने आप को हील करती है। अपनी आईज बंद ही रखते हुए आईज को आप रोल करेंगे और इंग्लिश का कैपिटल बी, व्हाइट कलर का बी 3 बार विजुलाइज करेंगे। बी, बी, बी। आप बी लेवल पे पहुंच चुके हैं। इस लेवल पे ब्रेन को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। आपको जो भी साउंड्स आ रही हो, कोई ट्रैफिक की आवाज, कोई बोलने की आवाज, वो सभी आवाजें आ रही हैं और जा रही हैं, आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो। आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स है। आप वो आवाजें आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही। आपका ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स है। कोई थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं, आप उन थॉट्स के साथ अपने आप को नहीं जोड़ते। आपका ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में है। बी लेवल पे आपका ब्रेन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। आपका ब्रेन इतना रिलैक्स हो जाता है जैसे पूरी डीप स्लीप के बाद उठने पे ब्रेन रिलैक्स होता है, उससे भी ज्यादा ब्रेन आपका रिलैक्स हो चुका है। अपनी आईज बंद ही रखते हुए आईज को अप रोल करते हुए इंग्लिश का कैपिटल लेटर व्हाइट कलर का ए 3 बार विजुलाइज करेंगे। ए, ए, ए। आप ए लेवल पे पहुंच चुके हो। इस लेवल पे फील कीजिए कि आप इस धरती से ऊपर क्लाउड्स की तरफ जा रहे हो। आप बादलों की तरफ जा रहे हो, ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ। आप क्लाउड्स में एंटर कर रहे हो। आप क्लाउड्स के बीच में से निकल रहे हो। व्हाइट कलर के क्लाउड्स आपकी चारों तरफ हैं। आप एक व्हाइट कलर के ब्यूटीफुल क्लाउड पे पहुंच चुके हो और उस जगह पे स्टेबल हो चुके हो। ये व्हाइट कलर का डिवाइन क्लाउड, आप इस पे बैठे हुए हो धरती से बहुत ऊपर। धरती अपनी स्पीड से चल रही है, घूम रही है, बट आप एक जगह पे स्टेबल हो।
इस क्लाउड के ऊपर एक डिवाइन हवा चल रही है। इस डिवाइन एयर को अपने फेस के साथ लगता हुआ फील कीजिए। ये आपके बालों में से गुजर रही है, आपकी आईब्रोज पे लग रही है, आपकी आईलिड्स पे, आपके फेस पे। ये एयर, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस, सूथनिंग फ्रेग्रेंस है। ये हवा अपने साथ पॉजिटिविटी लेके आ रही है, हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन। ये आपके अंदर, आपके सभी टिश्यूज में, एटम्स में पॉजिटिविटी बढ़ रही है, जॉय बढ़ रही है, खुशी, एनर्जी। आप पॉजिटिव एनर्जी से भर चुके हो। आप पूरी तरह से खुशी के साथ भर चुके हो। ये हवा आपको पूरी तरह से जॉय, एंथुसियाज्म, पॉजिटिविटी से भर चुकी है। इसी लेवल पे और डीपर जाने के लिए और हेल्थियर स्टेट पे जाने के लिए आप खुद से रिवर्स काउंटिंग 100 से लेके 1 तक स्टार्ट करेंगे। 1 सेकंड में एक नंबर की स्पीड के साथ आप खुद से स्टार्ट करेंगे, और जब तक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आएगी आप उसी लेवल पे रहेंगे। 100 से लेके 1 तक काउंट करते हुए धीरे धीरे और डीपर लेवल पे जाते जाएंगे। रिवर्स काउंटिंग खुद से स्टार्ट करेंगे।
रिलैक्स, आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। आप एक बहुत ही हेल्दी लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस पे हैं। इस लेवल पे आपका माइंड अपने आप को हील करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिविटी के साथ, एनर्जी के साथ भर जाता है। इस लेवल पे आप जितना टाइम स्पेंड करते हो, वो टाइम आपको खुशी देता है, रिलैक्सेशन देता है, एक एनर्जी देता है। इस डीपर हेल्थियर लेवल से बाहर आने के लिए हम काउंटिंग 1 से लेके 5 तक धीरे धीरे बाहर आएंगे। 1, 2, 3, धीरे धीरे बाहर आते हुए 4, 5, अपनी आंखें बंद ही रखते हुए अपनी मिशन स्टेटमेंट के प्रति अवेयर हो जाइए। फील कीजिए कि आपने वो सब अचीव कर लिया है। आपकी हेल्थ वाइज आप अपनी डिजायर्ड वेट पे, डिजायर्ड एनर्जी, डिजायर्ड हेल्थ लेवल पे पहुंच चुके हो। अपनी बॉडी को उस परफेक्ट शेप में फील कीजिए। आपके रिलेशनशिप्स फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ वैसे हो चुके हैं, बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी रिलेशनशिप्स। आप उनके साथ इंजॉय कर रहे हो, हंस रहे हो। वो सब आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपके पास लेके आते हैं और आप उनको सोल्व कर रहे हो। और वो खुशी के साथ आपको धन्यवाद देते हुए जा रहे हैं। सब लोग जो भी आपके पास आते हैं वो एक खुशी फील करते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं। हर कोई आपसे मिलना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। हर कोई आपसे जो भी लेना चाहता है आप उनको दे रहे हो। और इस देने के साथ आपकी एनर्जी, आपकी खुशी और भी बढ़ रही है। आप प्रोफेशनली एक बड़े ही स्टेबल लेवल पे पहुंच चुके हो। आपकी जॉब, आपका वर्क आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है।
आप जो भी करते हो आप बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ, क्रिएटिविटी के साथ कर रहे हो। आप एक परफेक्ट लाइफ जी रहे हो। जो भी आपके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपने सब अचीव कर लिए हैं। अपना ध्यान अपने सांस की तरफ लेके जाइए। अपनी सांस को अंदर आता हुआ और बाहर आता हुआ फील कीजिए। धीरे धीरे अपनी सराउंडिंग्स के प्रति अवेयर हो जाइए। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाना स्टार्ट करेंगे। उंगलियों को हिलाते हुए दोनों हाथों को एक दूसरे के पास लेके आएंगे और एक दूसरे के साथ रब करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ी जोर से रब करना स्टार्ट करेंगे ताकि हाथ जैसे ही थोड़े से गर्म होंगे हम उनको अपनी आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलेंगे। वेलकम बैक। तो कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस? आप अब चैट बॉक्स में लिखेंगे। जल्दी से 30 सेकेंड्स में very powerful and effective from Abani Kumar sir, Shrikant ji, good sir, excellent from Rawat ji, आयुष्मान गर्ग, सुपर सर जी। नींद आने लगा था आज, शिवतोष पांडे जी। जी दीक्षा जी पीसफुल। जल्दी से श्रुति जी, मीनाक्षी जी। ओके मीना, यस। आयुष्मान मन नहीं था उस स्टेट से बाहर आने का। ओके मीनाक्षी कपूर, वेरी नाइस, आई फेल्ट चिल्ड एयर blowing upon my body, great। तो ऐसे ही होता है धीरे धीरे करके, जैसे हम मेडिटेशन को करते जाते हैं। जैसे मीनाक्षी कपूर जी ने बोला कि एक्चुअल में उन्होंने वो चिल्ड एयर को जैसे फ्लोइंग फील किया। तो ऐसे करके जैसे जैसे हम करते जाते हैं और डेप्थ पे जाते जाते हैं वो, और हम इसकी एफिशिएंसी फील करते हैं। और जैसे अभी थोड़ा थोड़ा किसी को नींद आती है या किसी को पेन होता है, तो वो एक तरह से पेन कहीं ना कहीं अंदर की तरफ हमारे डीपर लेयर्स में वो पेन होता है। और जैसे हमारी ऊपर वाली लेयर्स जो है रिलैक्स हो जाती हैं, तो वो डीपर वाली लेयर्स का पेन निकल के आता है और वो धीरे धीरे करके रिलैक्स। फिर जैसे जैसे हम करते जाते हैं फिर वो पेन निकल जाता है अंदर से, क्योंकि जैसे हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होते हैं, जैसे जैसे हमारा कॉन्शियस माइंड रिलैक्स कर जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड की चीजें निकल के बाहर आने लगती हैं। ऐसे ही करके पेन का भी ऐसी है। बॉडी जैसे हमारे मसल्स हम रिलैक्स करते हैं
तो वो चीजें निकल के बाहर आने लगती हैं। लाइक वो पेन्स अपने आप फिर धीरे धीरे करके हील होने लगती हैं। ऐसे ही हमारे थॉट पैटर्न्स हैं जो धीरे धीरे करके अपने आप चेंज होने लगती हैं। तो यस, मीनाक्षी जी जैसे बोल रहे हैं 2006 की प्रॉब्लम है, बिल्कुल। तो ये पुरानी प्रॉब्लम्स ही होती हैं जो तब वो बट वो धीरे धीरे करके जैसे हम रिलैक्स स्टेट में पहुंचते हैं वो अपने आप हील करने लगती हैं। हमारी बॉडी के पास हर एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके साथ वो अपने आप अपनी चीज को हील कर सकती है। बस हमें अपनी अवेयरनेस उस तरफ लेके जानी है। ओके, तो अभी ना हम ये जो रिलैक्सेशन मेडिटेशन है, जैसे आप पूछ भी रहे हो, तो ये एक साइंटिफिक मेडिटेशन हम धीरे धीरे करके इसको देखेंगे कि कैसे हम इसको अपनी तरह से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे आयुष्मान जी ने बोला कि वो और उस स्टेज पे रहना चाहते थे, बिल्कुल जैसे जैसे आप करते जाओगे आप ज्यादा से ज्यादा टाइम वो जो ए स्टेट है उस पर स्पेंड करोगे तो वो आपके लिए भी अच्छी रहेगी और वो अपने आप से आप कस्टमाइज कर सकते हो। आज हम उसी की तरफ बढ़ेंगे। आपको आज की आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट भी है वो भी यही है कि आपने खुद से शाम को जो है वो भस्त्रिका के जो राउंड्स हैं A to लेके Z तक और 26 से लेके 1 तक वो वाले खुद से एक बार वो राउंड्स करने हैं। तो ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट रहेगी। इसके बाद हम कुछ जो है डिस्कशन करेंगे। हमारा जो एक सेकंड आज हमारी डिस्कशन रहेगी वो रहेगी ग्रेटिट्यूड पे। तो हम आपकी दिखा दीजिए आईज अप रोल करके। अच्छा, आईज को अप रोल कैसे करना है आयुष्मान जी? ऐसे है कि जैसे आपकी दीवार के सामने क्लॉक लगाओ, आपने थोड़ा सा अप रोल, जैसे हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो नेक आपकी सीधी रहेगी, आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ। बट उस सिचुएशन में जब हम मेडिटेशन करते हैं तो आईज क्लोज करके आपने ऊपर की तरफ देखना है। आपकी लाइक जैसे आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो आईज आपको थोड़ी सी अप्रोल हो जाती है। तो ये एक्चुअल में मेडिटेशन की स्टेट है। आपने कई अगर जैसे गुरु नानक देव जी या और कोई मेडिटेटर आपने देखा हो तो उनकी वो पेंटिंग में भी आईज को थोड़ा अप्रोल किया होता है। तो ये अपने आप स्टेट ऑफ मेडिटेशन में जाने के लिए आपकी हेल्प करती है। तो आज का हमारी जो फर्स्ट असाइनमेंट तो रहेगी कि आपने भस्त्रिका के 2 राउंड्स करने होंगे और सेकंड जो हमारी रहेगी वो आपकी मिशन स्टेटमेंट जो हमने विजुअलाइज की है तो आपने वो विजुअलाइज करनी है। वो आपने ऐसा ही अपना बिहेवियर में लेके आना है कि जैसे आप वो चीजें सब अचीव कर चुके हो। आप परफेक्ट लेवल ऑफ हेल्थ, परफेक्ट लेवल ऑफ फिटनेस अचीव कर चुके हो, परफेक्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप्स, परफेक्ट लेवल ऑफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ आप कर चुके हो। तो उस ढंग से ही आपने जब मतलब जैसे आपका बिहेवियर होना चाहिए, जैसी आपकी वॉइस होनी चाहिए, जैसे आप होने चाहिए तो वैसा ही आपने बिहेव करना है। आप उसके लिए अभी से अभी देखना भी स्टार्ट कर सकते हो कि आपने कहाँ पे घूमने जाना है, आपने कहाँ पे रेस्टोरेंट में जाना है। तो ये सब आप प्लानिंग करनी है आपने और आपने बिहेव वैसे करना है जैसे कि आप एक्चुअल में उस लेवल पे पहुंच चुके हो। तो धीरे धीरे करके अपने आप वो चीजें आपकी तरफ आ जाएंगी। तो पहली असाइनमेंट हमारी 2 राउंड्स ऑफ भस्त्रिका है जो आपने खुद से करनी है आंखें बंद करके A to लेके Z तक और फिर 21 से लेके 1 तक। सेकंड जो है आपकी मिशन स्टेटमेंट है और थर्ड हम अभी कुछ एक डिस्कशन करेंगे अगले 10-15 मिनट के लिए। तो उसमें से आपकी एक थर्ड असाइनमेंट निकल के आएगी। ठीक है जी। तो अभी मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं सबसे पहले। ओके, रेडी हैं सब लोग स्टोरी सुनने के लिए? एक्साइटेड है सब लोगों को? स्टोरी सुनना अच्छा लगता है? ओके, थैंक यू। सभी लोग अभी कैमरास जिनके अभी ऑफ हैं तो वो अपने कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। मीनाक्षी जी थैंक यू, आयुष्मान जी, सुमन जी, शिवतोष पांडे जी, पार्थ जी, श्रुति शर्मा जी, बसंती गिरी जी। ओके ओके, ये स्टोरी है 2 ब्रदर्स की। तो 2 ब्रदर हैं, उनका एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। ठीक है, और वो दोनों जो हैं राम और श्याम बिल्कुल पास पास में उनकी शॉप्स हैं। तो उनका जो
जैसे करियाना की शॉप्स होती हैं, डेली डे टू डे ग्रोसरी शॉप्स जिनको हम बोलते हैं, तो उन दोनों की ग्रोसरी शॉप्स हैं। एक्चुअल में वो उनके जैसे उनके जो पेरेंट्स थे, तो वो उनके पास उनके जो एंसेस्ट्रल एक खजाना था, तो उन्होंने क्या किया, वो जो एंसेस्ट्रल उनके पास जो खजाना था उसमें उनके पास 200 करोड़ रुपीस थे, 200 करोड़ रुपए थे। उन्होंने क्या किया, उनकी 100 करोड़ की एफडी राम के नाम पे और 100 करोड़ की एफडी श्याम के नाम पे कर दी। ठीक है जी। तो राम को तो इस बात का पता था कि उसके पास 100 करोड़ की एफडी है, बट श्याम को इस चीज का पता ही नहीं था कि उसके पास मतलब इतना बैंक डिपॉजिट है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनके नाम पे करवा दिया और वहीं पे बैंक में छोड़ दिया। तो राम को इस चीज का पता है, बट श्याम को इस चीज का नहीं पता। अभी क्या है, वो डे टू डे लाइफ उनकी जो वो उनकी दुकान है, उनका बिजनेस है, तो उसमें वो डेली उनकी इनकम है जो कभी लाइक 1000 रुपीज होती है, कभी 500 भी रह जाती है और कभी 2000 भी हो जाती है। ठीक है। अभी क्या है, जो राम है, राम तो बड़ा रिलैक्स्ड है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास तो 100 करोड़ रुपीज है ना, तो उसमें अगर उसके कभी 500 रुपए भी रह गए तो भी वो खुश है, 100,000 हो गए तो भी खुश है, 2000 हो गए तो भी खुश है। बट जो श्याम है उसको पता ही नहीं है कि वो उसके पास 100 करोड़ रुपीज हैं। तो वो क्या करता है, वो जिस दिन 500 होते हैं उस दिन बहुत दुखी हो जाता है, और वो सोचता रहता है कि कैसे 2000 हो जाए, कैसे मेरी कमाई जो है 2500 हो जाए। तो वो पूरा दिन उसी की तरफ सोचता रहता है, और पूरा दिन कभी बर्डन में, कभी थोड़ा सा मिलता है बहुत खुश हो जाता है, कभी बहुत दुखी रहता है, कभी सारा दिन यही सोचता रहता है कि कैसे ये हो जाए, कैसे वो हो जाए। बट राम जो है बड़ा रिलैक्स्ड है, क्योंकि उसको पता है कि ऑलरेडी उसके 100 करोड़ की उसके पास एफडी है। तो हमारी सिचुएशन भी सबकी इसी तरह है, हमारे पास एक कोई एफडी है 100 करोड़ रुपीस की, बट हमें उसका पता ही नहीं है, या हम उसे रियलाइज ही नहीं करते कि वो क्या 100 करोड़ हैं। अगर वो हमें रियलाइज हो जाए कि हमारे पास वो 100 करोड़ की एफडी है, तो हम जिन चीजों के लिए भाग रहे हैं, तो वो चीजें बहुत ज्यादा छोटी हमें लगेंगी, बहुत ज्यादा वो माइन्यूट हो जाएंगी, और हमें लगेगा कि ये चीजें तो मैटर करती ही नहीं। रिलेट कर रहे हैं सब लोग कुछ? ओके। तो वो क्या चीजें हैं, अब वो 100 करोड़ की एफडी क्या है? कोई भी टाइप करेगा चैट बॉक्स में, क्या सोचते हैं वो, क्या 100 करोड़ की एफडी है हमारे पास? क्या फिक्स डिपॉजिट है जिसे कहीं ना कहीं हम शाम जो था उसकी तरह हम भूल गए हैं? माइक क्वालिटी, ओके, यस। पॉजिटिव थॉट्स, शिवतोष पांडे जी, ओके। माय बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स, अबानी कुमार जी, वेरी गुड, ग्रेट। श्रीकांत अर्जू, डिवाइन एनर्जी, रावत जी, हैप्पीनेस, माइंड पावर, दीक्षा जी, भगवान जी का साथ एंड गुड हेल्थ फ्रॉम आयुष्मान गर्ग जी। ओके, तो देखिए जैसे अबानी कुमार जी ने लिखा बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन, तो क्या आप जो आपके पास आईज है, जो आपके पास हार्ट है, जो आपके पास लंग्स हैं, जो आपके पास किडनीज हैं, जो आपके पास ब्लड है, तो क्या आप उसको खरीद सकते हो? क्या जो अभी आज की डेट में सबसे अमीर व्यक्ति है, अगर उसका क्योंकि हम देखते हैं जैसे सभी की एक दिन एंड होना होता है, तो क्या वो उस चीज को परचेज कर सकते हैं? जैसे स्टीव जॉब्स था, उनको पेनक्रियाटिक कैंसर था, तो उनकी डेथ हुई, जिन्होंने एप्पल की सारा एप्पल फोन्स की वो की है, इन्वेंशन की है, तो उनको क्या वो अलग से पेनक्रियास खरीद पाए, वो वाला अपने वो सारी कमाई से जो उन्होंने एप्पल में से की? तो क्योंकि अगर हम अपने एक एक ऑर्गन की वैल्यू लगानी स्टार्ट करें, आईज की, नोज की, हमारे सिस्टम्स की, तो वो इतनी ज्यादा उसकी वैल्यू है कि उसको कोई परचेज कर ही नहीं सकता। सेकेंडली, जो हमारी एयर है, लाइक वाटर है, तो कि कभी एक बार ऐसे हुआ कि अकबर ने, जैसे वो बीरबल से पूछते थे कि एक गिलास ऑफ वाटर की कीमत कितनी होनी चाहिए,
तो बीरबल ने उनको बोला कि चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आप एक कहीं भी रेगिस्तान में आप जा रहे हो, डेजर्ट में, तो वहां पे आप खो जाओ और वहां पे आपको कोई पानी ना मिले और आपकी बिल्कुल लाइक आप डेथ होने वाली हो जाए और एक कोई बंदा आए और वो आपको हाफ ग्लास ऑफ वाटर दे जाए, तो क्या आप उसको इनाम में क्या दोगे? तो अकबर ने बोला कि हाँ, अगर पानी मेरे को नहीं मिल रहा होगा और कोई मेरे को हाफ ग्लास वाटर देगा तो मैं उसको अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। तो फिर उसने बोला कि बीरबल ने बोला कि चलो ठीक है, आपने आधा वो पानी पी लिया और फिर वो पानी आपके अंदर ही रुक गया, वो बाहर नहीं निकला, आपको यूरिन रिटेंशन हो गई, तो उसके कारण आपकी डेथ होने वाली होगी और फिर कोई डॉक्टर आता है, कोई वैद्य आता है और वो आपका ट्रीटमेंट कर देता है, तो आप उसको क्या दोगे? तो अकबर ने बोला कि मैं उसको अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। तो बीरबल ने बोला कि जब एक ग्लास ऑफ वाटर की कीमत अकबर का पूरा साम्राज्य हो सकती है, तो हम वो पूरे सृष्टि का जो वाटर है उसकी वैल्यू कैसे इन टर्म्स ऑफ मनी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारे पास इतना लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर है और वो अपने आप फ्लो कर रहा है। लाइक एक तो अवेलेबिलिटी और सेकंड उसकी सर्कुलेशन है, तो हमारी बॉडी में जाता है और हमारा जो भी है उसको क्लीन करके वो अपने आप से बाहर निकल जाता है। तो ये जो हमारे बॉडी सिस्टम्स हैं, ये जो एयर है, ये जो वाटर है, तो हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो हम इसकी वैल्यू जो ऑलरेडी हमारे पास है उसको हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और हम जो सिर्फ एक हमारे पास बैंक अकाउंट में मनी है या हमारे पास कैश है, सिर्फ हम उसको काउंट करते रहते हैं। या फिर हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं, तो जो आपकी फैमिली है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, तो वो उनके साथ जो आपकी बॉन्डिंग है, जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, क्या आप उसको लाइक इन टर्म्स ऑफ मनी हम उनको कर ही नहीं सकते या परचेज भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इनका लाइक अगर हम इनके प्रति अवेयर रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास ऑलरेडी कितनी वेल्थ है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। अभी देखिए, अगर आप अकबर के हमारी जो जनरेशन है अभी तक जहां पे हम पहुंचे हैं, तो हमारे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी चीजें हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हम सब लोग जूम पे मिले हुए हैं, लाइक कोई किसी सिटी से है, कोई किसी सिटी से है, जल्दी से अपनी सिटी टाइप करेंगे हम अपने चैट बॉक्स में और साथ में वो एडजेक्टिव जोड़ेंगे जैसे हम पहले जोड़ते होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल चंडीगढ़ और वैसे करके। तो देखते हैं हम कहाँ कहाँ से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्लीन जमशेदपुर फ्रॉम अबानी कुमार जी, और अबानी कुमार जी क्लीन जमशेदपुर को आनंद भी मान रहे हैं। क्लीन नोएडा फ्रॉम आयुष्मान, फेबुलस फरीदाबाद फ्रॉम श्रुति शर्मा जी, वंडरफुल हैदराबाद फ्रॉम श्रीकांत जी। मीनाक्षी सर मेरी 2 सिटी है, कौन सी बताऊं? तो आप तो और भी अच्छी बात है कि आपकी सिटीज भी 2 हैं, कोलकाता पीसफुल सिटी। तो देखिए, कोई कोलकाता से, लुधियाना से रावत जी, हैदराबाद से श्रीकांत जी, जमशेदपुर से अबानी जी, फरीदाबाद से श्रुति जी, आयुष्मान जी, तो पठानकोट से दीक्षा जी। तो सब लोग देखिए, टेक्नोलॉजी तो हम सब लोग कहाँ कहाँ पे बैठे हैं और फिर भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। गाजियाबाद, शाहजहानपुर, तो ये एक टेक्नोलॉजी है। और हमारे पास जो एसीज हैं, है ना, तो अगर हम अपना, जैसे अकबर एक बहुत बड़ा राजा जिसकी हम बात कर रहे थे, बहुत बड़ा सम्राट माना जाता है, बट उसके पास भी ये फैसिलिटी तो नहीं थी कि वो जूम पे किसी के साथ बात कर सके, इवन फोन भी नहीं थे। तो अच्छा, उन्होंने काफी सारे अपने पास कुक्स रखे हुए थे जो उनके लिए खाना बनाते थे, बट फिर भी उनके पास उतनी वैरायटी नहीं थी जितनी आपके पास जोमेटो और स्विगी के साथ है ना। और उनके पास डॉक्टर्स उन्होंने स्पेशल रखे हुए थे, है ना, उनको वो बुलाते थे, जब वो बुलाने के लिए भेजते थे वो आ जाते थे। बट वो आपके पास तो उससे भी ज्यादा क्विक सर्विस है, आप तो एम्बुलेंसेज हैं, फोन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, 1 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती है। और जितनी जल्दी आपको मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल है, उतनी उस टाइम पे भी अवेलेबल नहीं थी।
और उन्होंने वो अकबर बीरबल जैसे हम ये डिस्कस कर रहे हैं, तो वो बीरबल से सब कुछ पूछते थे, बीरबल आगे क्रॉस क्वेश्चन करके कई बार वो बीरबल बोल देता था कि मैं कल बताऊंगा, 1 महीने बाद बताऊंगा। और आपके पास तो गूगल है, आप गूगल करते हो और एकदम से वो चीजें निकल के आ जाती हैं। और उन्होंने अपने रहने के लिए वो बनाए हुए थे कुछ ना कुछ स्पेशल फोर्ट्स बनाए हुए थे, बट फिर भी उन फोर्ट्स में भी वो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल, टेम्परेचर को उतना कंट्रोल नहीं कर पाते थे जितना आप एसी के साथ। एक बटन दबाइए और एसी आपके रूम को ठंडा कर देता है, हीटर आपके रूम को गर्म कर देता है, आपकी मैट्रेसेस। तो वो सब कुछ आपकी जो अभी लग्जरीज हैं, अगर हम उनको फील करें तो वो उस जो अकबर सम्राट द ग्रेट अकबर, उसके टाइम पे जो अकबर को अवेलेबल थी उससे ज्यादा फैसिलिटीज, लग्जरीज आपके पास अभी अवेलेबल हैं। बट हम अपना कंपैरिजन करते हैं सिर्फ उनके साथ जो हमारे पड़ोसी हैं या जो हमसे थोड़ा सा आगे हैं। सिर्फ उनके पास इतना डिफरेंस है कि हमारे पास 100 करोड़ है, किसी के पास 100 करोड़ और 1000 है, किसी के पास 100 करोड़ और 2000 है। तो सिर्फ इतना डिफरेंस है, बट हम वो सिर्फ 100 करोड़ को भूल जाते हैं और सिर्फ जो 1000 और 2000 है उसकी तरफ ही ध्यान देते हैं, फिर उसके साथ ही कंपैरिजन करते हैं। बट अगर हम ये अपनी ये चीजें जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर इनको काउंट करना स्टार्ट करें तो हमें लगेगा कि ये 100 करोड़ हमारे पास ऑलरेडी हैं, और वो जो ऊपर वाली चीजें हैं वो मैटर ही नहीं करती। ये नहीं है कि हम उनके लिए काम नहीं करेंगे, हम उनके लिए भी काम करेंगे, बट वो हमारी स्टेट ऑफ माइंड एक अलग होगी, तब हम जॉयफुली काम कर रहे होंगे, तब हम वो स्ट्रेस नहीं होगा, वो नेगेटिव थॉट्स नहीं होंगी, तब वो जॉय होगा, एक पीस, एक आपके बैक ऑफ द माइंड जो होगा, एक सेटिस्फेक्शन चलती रहेगी कि आपके पास ऑलरेडी इतना कुछ है, सिर्फ आप तो जो चीजों के लिए काम कर रहे हो वो बड़ी छोटी सी चीजें हैं। तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, जॉय टोटल लेवल ऑफ जॉय, टोटल लेवल ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी आपने अचीव करना है, चाहे आपकी हेल्थ है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे आपकी फैमिली लाइफ है, तो एंड रिजल्ट तो आपको वही चाहिए ना, हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन। तो पैसा कमा के भी वो क्या करोगे आप, मतलब उससे भी आप फिर जॉय ही खरीदने जाओगे, हैप्पीनेस ही उससे एक्सपेक्ट करोगे ना। तो अगर आप अपनी ऑलरेडी जो आपके पास है ग्रेटिट्यूड, अगर आप उसको काउंट नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये होगा कि जब आपने वो अचीव कर भी लिया तो आप उसको भी भूल जाओगे। तो मान लीजिए आपकी आज की लेवल है कि आपने इस लेवल पे पहुंचना है, तो होता क्या है, मोस्टली एक रैट रेस बन के रह जाती है। जब वो आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे तो आपका एक लेवल नेक्स्ट आप रख लोगे, फिर आप उसकी तरफ भागते जाओगे, फिर आप वहां पे पहुंच जाओगे तो उसके ऊपर वाला लेवल रख लोगे। तो जो ऐसे करते करते अगर मनी को हम वो लेवल लगाएं, तो लोग पहले सोचते हैं कि मैं सिटी का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, फिर अपने स्टेट का सबसे, फिर अपने देश का सबसे, फिर दुनिया का सबसे, और एक बार वो दुनिया का भी सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं तो फिर उनको ये लगा रहता है कि कोई और उनको रिप्लेस ना कर ले। ठीक है जी, तो कोरिलेट कर रहे हैं सब लोग। तो हाँ जी, आज की हमारी जो असाइनमेंट तीसरी रहेगी वो ये रहेगी कि हम एक ग्रेटिट्यूड वाली लिस्ट बनाएंगे अपनी। उसमें हम लिखेंगे सब कुछ, जो जो चीजें हैं, जो भी आपके मन में आएंगी, जो भी लाइक आप पास्ट से लेके फ्यूचर का कंपैरिजन भी कर सकते हो, जैसे हमने अकबर का हमारे साथ में किया। उनको देख के भी जो भी आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, मॉडर्न मशीन्स हैं, उनके प्रति भी अपना ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो कि इन इन चीजों के प्रति आपका ग्रेटिट्यूड है। जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं, जो आपकी जो कुछ अभी आपको मिला है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, उसके प्रति भी आप अपने उसको आपने नोट डाउन करना है, लिस्ट डाउन करना है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके प्रति आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो। तो वो वाली लिस्ट आपने जितनी लंबी लिस्ट हो सकती है आप उतनी लंबी लिस्ट वो बनाओगे, उसको पेन डाउन करोगे, लिखोगे, और वो लिस्ट जो है हम शाम को देखेंगे कि आपने कितनी चीजें उसमें लिख ली हैं। ठीक है, तो ब्रेक डाउन करके ज्यादा से ज्यादा चीजें जो भी आपके माइंड में आ रही हैं पूरे दिन में, शाम को 7 बजे तक आपका 12 घंटे अगले, तो आपके मन में जो भी चीजें आएंगी उनके प्रति आपने ग्रेटिट्यूड फील करना है और उसको लिखना है। आप कॉपी पेन पे भी लिख सकते हो, फोन पे भी एक अलग से एप्स भी जैसे आती हैं तो उसमें भी आप कहीं ना कहीं नोट्स वाली ऐप होती है तो वो खोल के उसमें भी लिख सकते हो।
तो या फिर अगर आप रूम में पेस्ट कर सकते हो तो वो भी अच्छा है। अगर आप रूम में पेस्ट करके, जैसे श्रुति शर्मा जी ने कल वो शेयर भी किया था, उन्होंने बड़ा अच्छा वो अपने गोल से जो लिख के वहां पे लगाए हुए थे, तो वैसे भी आप लिख के लगा सकते हो। तो उसमें आप एक पोस्टर्स लगा सकते हो अपने, जो आपका रूम है उसकी उस पे की दीवार पे लगा सकते हो। अगर दीवार पे नहीं लगाना चाहते तो उसके जो रूम का दरवाजा होता है उसके बैक साइड पे लगा के एक चार्ट लगा सकते हो। उसमें आप अलग अलग कॉलम्स बना सकते हो, जिसमें हाँ अफर्मेशन, जैसे मीनाक्षी कपूर जी बोल रहे हो, अफर्मेशन उसमें लिख सकते हो आप, उसमें गोल्स लिख सकते हो आप, उसमें अपने जो है कि ये जो ग्रेटिट्यूड की लिस्ट है उसमें लिख सकते हो। और अगर आप रूम में नहीं किसी ना किसी रीजन से पेस्ट करना चाहते तो आप अपने फोन में उसको लिख सकते हो। तो ठीक है जी, आज की 3 असाइनमेंट्स हो गई। कोई जल्दी से मेरे को बताए कि 3 असाइनमेंट्स कौन कौन सी हैं। बस्त्रिका, हाँ जी, रावत जी आप बताइए। जी जी, आपकी आवाज थोड़ी सी मेरे को ठीक ढंग से नहीं आ रही है, दोबारा से बोलिए। एक तो भस्त्रिका बनानी है। हाँ भस्त्रिका करनी है, हाँ जी, 2 प्राणायाम बार। करना है। जी 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 जी, और अपना ग्रेडिंग लिस्ट। हाँ जी, और एक आपकी मिशन स्टेटमेंट को आपने फील करना है। ठीक है, तो ये वाला जो मिशन स्टेटमेंट जैसे मीनाक्षी जी ने लिख भी दिया, भस्त्रिका वाला जो दो राउंड्स करने हैं, ग्रेटिट्यूड राइट करना है और मिशन स्टेटमेंट को फील करना है। ये जो भस्त्रिका है आप खाने के बाद ना कीजिए, खाने के कम से कम 1 घंटे का खाने के बाद 1 घंटे का कम से कम गैप होना चाहिए। तो अदरवाइज आप इसको एक बार शाम तक आपने करना है, शाम को आप कर सकते हो। और ग्रेटिट्यूड की लिस्ट जितनी बड़ी आपकी, जो जो आपके मन में जो भी आपके आता जाएगा उसको लिखते जाते हैं, और मिशन स्टेटमेंट को आपने फील करना है। अच्छा, अभी बस हमारे पास 5 मिनट्स और, अगर या फिर हम जो किसी का क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में, या अगर किसी की कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो वो अपना अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में कर सकती हैं। मीनाक्षी जी आप कुछ अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। नहीं, ओके। दीक्षा जी, बसंती गिरी जी। ओके, किसी का कुछ है क्वेश्चन तो, या कोई क्वेरी है तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज हम क्लोज करेंगे ये सेशन। तो ठीक है जी, फिर कल हम मिलेंगे, कल सुबह मॉर्निंग ऐसी 5:30 पे, और कल हम कुछ और एक नया डिस्कशन करेंगे, कुछ नई बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। और साथ में आज आप जैसे भस्त्रिका करोगे तो हम धीरे धीरे करके जो हमारी C2A मेडिटेशन के जो पार्ट्स हैं उसको ऐसे खुद से करते जाएंगे, ताकि आप खुद से वो मेडिटेशन कर पाओ और खुद से उसको कस्टमाइज भी कर सको। अगर आपने उसको लाइक अपने अकॉर्डिंगली, जो आपका टारगेट है उसके अकॉर्डिंगली, आपकी टाइम अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी कर सको। तो ठीक है जी, तो क्लोज करते हैं यहाँ पे। शाम को 7 बजे तक आपने असाइनमेंट्स करके ग्रुप में डालनी है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू बानी जी, श्रीकांत, मीनाक्षी जी, तनाया, दीक्षा, बसंती जी, श्रुति शर्मा जी, आयुष्मान, शिवतोष एंड सुमन झा। ओके जी, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।